बेटा मैं मैथ गुरु 9 पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन टू द वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना, विच इज़ बेस्ड ऑन द आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट, है ना। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को कि सर कैसे एक लीनियर इक्वेशन बनाएं, क्योंकि इसमें तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं देता है। इसमें क्वेश्चन अपने को ऐसे देता है कि भाई जैसे अभी ये पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में देगा, स्टेटमेंट रीड करेंगे केयरफुली एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फॉर्म द लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्व, है ना। तो लेट सपोज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट 4 chair and 3 tables cost 2100 rupees, which means हम सपोज करेंगे let cost of chair इक्वल टू x रुपीज़। मेरी बात समझ में आ गई। एंड कॉस्ट ऑफ टेबल is equal to y rupees. Are you getting my point? है ना। After that you can write here according to the first condition. According to the first condition, what is the saying the first condition? The first condition is saying that 4 chair and 3 tables cost 2100 rupees, which you can just form 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2100। आर यू गेटेड माई पॉइंट, है ना। 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट 2100। तो सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द लीनियर इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2100, है ना। नाउ द सेकेंड इक्वेशन इज अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन सेइंग दैट second condition? तो second condition is saying that and 5 chair and 2 tables cost 750 rupees, means 5 chair and you already let the cost of chair is equal to x rupees. Similarly you have just write here 5x plus 2y is equal to 750. This is the equation number second. Okay, and make the linear equation. This is the equation number first and this is the equation number second. You have to solve it, है ना, by using the elimination method, by using the cross multiplication method, by using the substitution method. So we have to apply the substitution method, elimination method, because it is the very simple method for this linear equation, so that you have to check the coefficient of y, both are different, है ना। You have just equate this and multiply by 2 in the equation number first and multiply by equation number 3 by 3. Okay, then equation number first have to make 4 to the 8x and plus 3 to the 6y is equal to 4200. Okay, this is the equation number 3, and after that you have to multiply 3 in the equation number second. It will form 15x plus 6y and equal to 300, 3 5 are 15, 3 7 are 21, 122, or 3 1 are 3 2 5, and this is the equation number 4. This is the all process of like that. So you can check here the coefficient of 6 y is 6 and coefficient of y in the second equation also 6, but the same sign. And if you obtain the same sign, it means you have to subtract the equation number third and equation number fourth. You can write here subtract equation third minus equation fourth. Okay, now the equation right here 8x plus 6y is equal to 4200, and fourth equation is 15x plus 6y is equal to 5200, है ना। This is the sign change because we have to subtract it, then this will terminate it, and there is minus 7x is equal to 0, है ना, and 5, 2 minus 2 0, 150. Okay, minus, then x equal to 1050 minus or upon 7 minus, so minus minus plus, and you can divide here 7 1 just 7,
and 3 35, 7 5 are 35. Then the value of x equal to 150. Okay, and now putting the value of x in equation number first or second. The second equation is 5x plus 2y is equal to 1750. You have to put here the value of x, so 5 into 150 and plus 2y is equal to 1750, and this is go to right hand side. So 2y is equal to 1750 and minus 500, 5 5 है ना, आ गया. Then you have to minus it. So 2y is equal to 0 and 550, this also 0, 1000. Then y is equal to 1000 or upon 2, this will terminate 500. Okay, तो y equal to 500 है ना. You can check here कि the value of x and y is correct or not correct. Then you can put it the equation of first or second in the left hand side, and we have just write here 5x plus 2y, and the value of x equal to 5 into 150, value of x is 150, and plus 2 into 500, and this will make 750, and plus this will make 1000. This will, which is the right hand side, means our answer is correct. You have just checked the answer well. Answer of first, this is the correct answer. The cost of a chair is 150 and cost of a table is 500. ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना. ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया. सिंपल है, बहुत सिंपल है. आपको रीड करना है. यू हैव जस्ट रीड द इक्वेशन स्टेटमेंट एंड कन्वर्ट इनटू द लीनियर इक्वेशन, है ना. चलो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया. अब दूसरा क्वेश्चन लगा देखो. सेम क्वेश्चन है. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड सेइंग 37 पेन एंड 53 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट ऑफ 350. ठीक है ना. वाइल 53 पेन्स एंड 37 पेन्स cost is 400. Then find the cost of a pen and cost of a pencil. So this is the same question, and you have just write here the cost of a pen is equal to x rupees, and the cost of one ape of pencil is equal to y rupees. Okay, now the equation according to the first condition, this is the right here. According to the first condition is saying that, है ना, 37x and plus 53y is equal to 320. And according to the second condition, the second condition is while the 53 pence and you just write here 53x and plus 37y is equal to 400, and you have just solved it by using the elimination method, substitution method और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सिंपल है ना. आपको समझ में आ गया कैसे कैसे क्या कर रहे हैं. ठीक है ना, बहुत सिंपल है. तीसरा क्वेश्चन देखो. तो तीसरा भी सेम है. क्या कह रहा है, 4 table and 3 chair together cost 2250 rupees. Similarly, 3 tables and 4 chair cost 950. Find the cost of chair. Okay, find the cost of 2 chair and 1 table. तो पहले हम लोग एक चेयर और एक टेबल का रेट निकालेंगे, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा. बात समझ में आ गई. क्लियर है. चलो, तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप कर लेना इसको. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई. अब ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन. फोर्थ नंबर. कौन सा? फोर्थ नंबर. तो फोर्थ नंबर देखते हैं. द फोर्थ नंबर क्वेश्चन सेइंग दैट ए एंड बी हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंज, है ना. तो हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4. लेट ए हैव x orange and B has
सॉरी हैव ही रहेगा, वी हैव वाई ऑरेंज। आर यू गेट माई पॉइंट? चलो अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इज सेइंग दैट ए सेज बी, मतलब ए बी से कहता है इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंज, है ना। तो अगर भाई ए एक्स है, क्या है, एक्स है, तो अगर भाई ये एक्स से 10 ऑरेंज गिव करे कि ए सेज बी, ए बी से कहता है कि इफ़ यू गिव 10 ऑरेंज, है ना। तो भाई कह रहा है कि देखो ये था वाई और ये था एक्स, अब ये ए था और ये बी है। अब ए बी से कहता है भाई अगर तुम 10 ऑरेंज हमको दे दोगे, बात समझ में आ गई, इफ़ यू आर गिविंग द 10 ऑरेंज, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए बी से कह रहा है कि अगर तुम 10 ऑरेंज हमको दे दोगे, तो 10 ऑरेंज देगा भाई, तो ये इससे 10 निकलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, और जब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या कह रहे हैं, ए सेज टू बी इफ़ यू गिव 10 ऑरेंज ऑफ योर ऑरेंज आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंज लेफ्ट विथ यू। मतलब ये कह रहा है कि अगर तुम मुझे 10 दे दोगे तो जो तुम्हारे पास बचा हुआ है मैं उसका 2 गुना हो जाऊंगा। बात समझ में आ गई? इक्वेशन समझ में आ गई ना? चलो देखो सॉल्व करो, एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2y एंड माइनस का 20, ठीक है। चलो माइनस का 20 है ना, माइनस का 20, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको उधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 20 एंड माइनस का 10। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 30। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड, सॉरी फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया? ऐसे अपने को रीड करके ट्रांसफॉर्म करना है ना। सेकंड कंडीशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन इज सेइंग दैट, है ना, देखो ये समझ में आ गया, आई विल ट्वाइस, देखो आई विल, देखो आई विल ट्वाइस द ऑरेंज लेफ्ट विथ। तो बी रिप्लाइज करता है, क्या रिप्लाई करता है बी? कहता है इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंज। अब ये एक्स है और ये वाई है, ये ए है और ये बी है, तो बी रिप्लाई करता है ए से, क्या रिप्लाई करता है, इफ़ यू गिव मी 10 ऑरेंज ऑफ योर्स। कह रहे यदि तुम मुझे 10 ऑरेंज दे दो, ये बात समझ में आ गई। तो आई विल द सेम नंबर ऑफ ऑरेंज एज लेफ्ट विथ यू, कह रहा है मेरे पास जो नंबर है आपके पास उसका मैं सेम हो जाऊंगा, मतलब इक्वल हो जाऊंगा। बात समझ में? जैसे भी कहता है अगर तुम मुझे 10 दे दोगे तो मैं तुम्हारे इक्वल हो जाऊंगा। समझ में आया? तो ये अगर इधर आएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा बेटा तो ये 20 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? सेकेंड हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब ध्यान देखो, पहली लीनियर इक्वेशन बनेंगे, दूसरी बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड यू हैव टू सॉल्व इट, है ना। देखो पहली इक्वेशन, अब देखो मान लो हमको x को एलिमिनेट करना है, दोनों को कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। समझ में आया? तो ये था x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 30, ठीक, ये समझ में आ गया। और दूसरी इक्वेशन क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये माइनस है, अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ठीक है ना। तो ये तो कैंसिल हो गया, इधर से माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 50, क्लियर है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 50, कितनी आ गई, 50। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? y की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई, ठीक है ना। y की वैल्यू कितनी आ गई, 50। चलो अब ये y की वैल्यू 50 आ गई तो उसको किसी इक्वेशन पुट कर लो। देखो पहले इक्वेशन पुट कर लेते, x माइनस वाई इक्वल टू, x माइनस वाई इज इक्वल टू है 20। अब 50 यहाँ उधर जाएगा भाई, तो y इज इक्वल टू 20 और प्लस का 50, तो ये हो जाएगा, सॉरी x इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 70। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, है ना। देखो y की वैल्यू, आंसर चेक करते हैं भाई, देखो आंसर चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैं भाई दूसरे का, देखो दूसरे का, सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन है, ये देखो ये है कि नहीं, चौथा क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, चौथा का आंसर। ऑरेंज जो ए के पास कितना है 70 और बी के पास कितना है 50। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमारा आंसर क्या है, सही है, क्लियर है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, है ना, बहुत आसान है। ठीक, ऐसे भाई देखो
क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखो 5 कह रहा है, 5 क्या कह रहा है, देखो रीड करो। 5 कह रहा है A and B have each have certain number of mangoes. A says to B, if you have 30 of your mangoes, I will twice as many as left with you. And B replies, if you give me 10, so I will thrice as many as left with you. How many mangoes does each have? बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? देखो तो हम करते क्या है भाई, ध्यान से देखो क्या करेंगे भाई। देखो हम मान लेते हैं भाई, लेट ए हैव, है ना, क्या मान ले, क्या मान ले भाई, एक चीज़ मान लेते हैं, है ना, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ मैंगो ए हैज़, है ना, सिमिलरली वाई बी द नंबर ऑफ मैंगो बी हैज़। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अब देखो अब क्या कह रहे हैं भाई, ए सेज टू बी, ए बी से सेज कर रहा है, क्या कर रहा है, सेज कर रहा है बी से। क्या कहता है भाई, देखो ए सेज कह रहा है इफ़ यू गिव 30 ऑफ योर मैंगो, मतलब ये इसके पास एक्स था और इसके पास वाई था। क्या कह रहा है, अगर तुम 30 मैंगो दे दो तो ये 30 मैंगो इधर आकर प्लस हो, ये इधर दे देगा, बात समझना है कि नहीं, इधर दे देगा। तो कह रहा है आई विल हैव ट्वाइस एज मेनी एज लेफ्ट वी, मतलब जो तुम्हारे पास बचा मैं उसका 2 गुना हो जाऊंगा। कब, जब तुम 30 मैंगो हमको दे दोगे। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? देखो क्या कर रहा है कि अगर ए बी से कहता है कि अगर तुम 30 मैंगो मुझे दे दोगे, तो ये जब 30 इधर आएगा भाई, जब वाई दे देगा तो इसके पास 30 कम हो जाएगा ना, तो ये जब इधर आएगा तो एक्स के पास ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हो जाएगा एक्स पर 30 इज इक्वल टू 2i एंड माइनस का 60। बात समझ में आ गई? देखो इक्वेशन बन गई, ये क्या बन गई भाई, x और माइनस 2i इज इक्वल टू माइनस का 90। क्लियर है? दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके चलो अब देखो इक्वेशन सेकंड क्या कहता है भाई, देखो तो बी रिप्लाई करता है किसको, ए को, है ना। इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो सिंपल उसी टर्म लिखो, इधर ए मान लेते इधर बी मान लेते। अब ये रिप्लाई कर रहा है ना, सेज कह रहा है, तो इसके पास x रहा होगा, इसके पास y है ना। तो रिप्लाई करता है, क्या कहता है, इफ़ यू गिव मी 10, कह रहा है कि अगर तुम मुझे 10 दे दोगे, तो 10 देगा तो इसके पास ऐड होगा, इसके पास माइनस होगा। बात समझ में आ गई, है ना। क्या करेगा भाई, अगर तुम मुझे दे दो, कहाँ गया भाई, बी रिप्लाइज इफ़ यू गिव मी 10 तो आई विल हैव थ्राइस, कह रहा है मैं तुम्हारे का 3 गुना, मैं तुम्हारे जब जैसे तुम दोगे तो मैं तुम्हारे का 3 गुना हो जाऊंगा। कितने गुना हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा। बात समझ में, देखो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि इफ़ यू गिव मी 10 आई विल हैव थ्राइस एज मेनी एज लेफ्ट विथ, मतलब जो तुम्हारे पास बचे मैं उसका 3 गुना हो जाऊंगा। बात समझ आ गई? समझ में आया? तो इक्वेशन बन गया, तो ये बन गया भाई 3x, सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है, 3x माइनस 30 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। तो ये बेटा इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा भाई 3x एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 40। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट बन गई, इक्वेशन सेकंड बन गई। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी इक्वल नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ वाई इक्वल नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक अगर इसको इक्वल करेंगे तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें इक्वल करेंगे तो इसमें भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 6x माइनस का 2i और इक्वल टू 80। ठीक है ना। और पहली वाली क्या है भाई, x माइनस 2i इक्वल टू माइनस 9, एक्स माइनस 2i इज इक्वल टू माइनस का 90। अब दोनों का साइन सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन ये थर्ड हो गई और ये फर्स्ट, तो थर्ड माइनस फर्स्ट। ठीक है ना। तो साइन चेंज, माइनस प्लस और माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, इधर से हो गया भाई 5x, तो ये प्लस हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 90
और प्लस 80 170 कितना हो जाएगा 170 है ना। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 55 सॉरी 85 कितनी आ जाएगी 85। एक मिनट रुक जाओ देखो x इज इक्वल टू 170/5 तो 5 3 जा 15 यहाँ से 2 बच गया 20 तो 5 2 जा 20 कितना आ गया भाई कितना आ गया बोलो कितना आ गया भाई 4 इधर 34 आ गया है ना। अब x इक्वल टू 34 किस में रख दें भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में फर्स्ट में रख दो। तो दे रखा है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 90। अब भाई x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 34 तो ये हो जाएगा 34 ये इधर आएगा बेटा तो ऐड हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 2y तो ये ऐड हो जाएगा भाई तो इधर 4 9/2 इक्वल टू y तो ये इससे कैंसिल हो गया 6 और 2 तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 62 ठीक है ना कितनी आ गई 62 ये आंसर आ गया ठीक है। चेक करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो देखो ये 34 आ गया इधर 62 आ गया क्लियर है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना बहुत आसान है ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं ऐसे ही सिंपल देखो अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 हो गया 6 क्या कहते हैं 6 नंबर भाई सेम क्वेश्चन है देखो क्या भाई सेम क्वेश्चन है तो जब सेम क्वेश्चन है तो सेम क्वेश्चन लगाते हैं ध्यान से देखो सेम क्वेश्चन क्या कहता है भाई देखो वन सेज गिव मी 100 friend I shall then become the twice as rich as you. The other replies if you give me 10 I shall be the 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their देखो क्या कहते हैं भाई छठा क्वेश्चन क्या कहता है वन सेज सेम क्वेश्चन है यार जैसे अभी ऊपर लगाया हो ना सेम क्वेश्चन क्या कहता है वन सेज ये कहता है क्या कहता है गिव मी 100 रुपीज़ तो हम मान लेते हैं 2 लोग होंगे है ना कितने लोग होंगे 2 लोग होंगे तो है ना लेट वन हैज़ x रुपीज़ एंड सेकेंड हैज़ 2 आदमी होंगे तो हमने एक को x मान लिया दूसरे को y रुपीज़ मान लेते हैं ठीक है ना। अब देखो भाई क्या कहता है एक कहता है एक किससे कहता है दूसरे से क्या कहता है भाई गिव मी 100 रुपीज़ अगर भाई 100 रुपीज़ होगा तो इसके पास y है तो इसके पास क्या माइनस हो जाएगा तो इसके पास क्या होगा 100 ठीक है ना। तो आई सेल क्या कह रहा है आई सेल देन बिकम द ट्वाइस एज रिच जो तुम्हारे पास बचा हुआ है मैं उसका 2 गुना हो जाऊंगा तो ये देखो क्या बन गया x प्लस 100 एंड इक्वल टू 2y माइनस 200 ठीक है ना। तो ये इधर आएगा बेटा तो x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 300 आएगा कि नहीं आएगा है ना। चलो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई ठीक है सिंपल। फिर क्या कह रहा है देन अदर रिप्लाइज तो ये देखो पहला हो गया ये देखो दूसरा तो जो सेकंड है ये सेकंड हो गया हमने डायरेक्शन गलत लगा लिया ये सेकंड हो गया। अब सेकंड रिप्लाई क्या करता है भाई ध्यान से देखो देन अदर रिप्लाइज ये इसके पास x रहा होगा इसके पास y रिप्लाई करता है इफ़ यू गिव मी 10 कह रहा है कि अगर तुम मुझे 10 दे दो तो इसके पास भाई 10 आ जाएगा इसके पास क्या आएगा माइनस का 10 आएगा समझ में आया। तो कह रहा है कि अरे सॉरी ये 10 हाँ आई सेल बी 6 टाइम्स एज रिच यू कह रहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपीज़ दे दोगे तो मैं तुम्हारे का 6 गुना हो जाऊंगा तो ये रहा 6 गुना बात समझ में आ गई नहीं आ गई है ना कि जो तुम्हारे पास बचा हुआ है मैं तुमसे कितना हो जाऊंगा 6 गुना हो जाऊंगा तो ये हो जाएगा बेटा 6x माइनस का 60 इक्वल टू वाई प्लस 10 तो ये उधर जाएगा भाई तो 6x माइनस वाई इज इक्वल टू उधर जाएगा ऐड हो जाएगा तो 70 हो गई क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया ठीक है ना। अब भाई देखो सेम क्वेश्चन बन गया तो अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे अपने को रीड करना है और आंसर निकालना है। तो मैंने तुमको 6 क्वेश्चन बता दिए ठीक है तो इसको तुम किसी एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगा सकते हो ठीक। 7 नंबर क्या कहता है रीना हैज़ पेन्स एंड पेंसिल विच टुगेदर आर 40 इन नंबर ठीक है ना।
देखो सिंपल बहुत, ये तो उससे भी सिंपल है, ठीक है। कैसे, देखो मान लेते हैं भाई विच इज़ 14 नंबर, इफ़ शी हैज़ 5 मोर पेंसिल एंड 5 लेस पेंसिल, देन नंबर ऑफ पेंसिल वुड बिकम 4 टाइम द नंबर ऑफ पेन्स। बहुत आसान है यार ये तो, और अच्छा आसान क्वेश्चन है। कैसे लगाओगे भाई, देखो ध्यान से कैसे लगाओगे, है ना। देखो मान लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 7 नंबर है ना, 7 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। रीना हैज़, मान लेते हैं रीना के पास, रीना हैज़ एक्स पेंसिल है, पेन है ना, एंड रीना हैज़ वाई पेंसिल, मान लेते हैं पेंसिल, ठीक है ना। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है भाई, देखो कह रहा है टुगेदर कर लिया जाए, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कह रहा है 40 नंबर में गए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखो इफ़ सी हैज़ 5 मोर पेंसिल, क्या भाई 5 मोर पेंसिल, अपने पेंसिल को y माना था, है ना, तो इधर x होगा और इधर y होगा, तो कह रहा है कि अगर 5 मोर पेंसिल होगा, ठीक है, और ये 5 कम पेंसिल होगा, तो कह रहा है देन नंबर ऑफ पेंसिल वुड बिकम 4 टाइम, है ना, ऑफ द पेंसिल, ये 4 टाइम हो गया, क्लियर है। देखो सिंपल इक्वेशन बनेगी नहीं, ये हो गया बेटा 4x माइनस का 20 इज इक्वल टू वाई प्लस 5, तो ये इधर आएगा, तो भाई ये 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब तुम इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर निकल जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। ऐसे अपने को रीड करना है, ठीक है ना। तो 7 नंबर हो गया। देखो 8 नंबर देखो ध्यान से, तो 8 नंबर क्या कहता है भाई, 8 नंबर कहता है कि अ मैन हैज़ ओनली 20 पैसा कॉइन, कितने पैसे का कॉइन है, 20 पैसा कॉइन्स एंड 25 पैसा कॉइन्स इन हिज पर्स, ठीक है ना। 20 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन है, तो हम मान लेते भाई, क्या मान ले भाई, देखो लेट मैन हैज़ 20 पैसा कॉइन इक्वल टू x रुपीज़, ठीक है ना। सिमिलरली है ना 25 पैसा कॉइन इक्वल टू y रुपीज़ मान लेते हैं, क्लियर है, ठीक है। इन द वर्स कह रहा है कि इफ़ ही हैज़ 50 कॉइन, कितनी कॉइन है, 50 कॉइन है ना, इन ऑल टुगेदर इज 11 रुपीज़ 20.25 पैसा, कितने हैं भाई, टोटल कॉइन कितने हैं 50, उसके पर्स में भाई है देखो दो उसके, ये कह रहा है कि अ मैन हैज़ ओनली 20 पैसा कॉइन एंड 25 पैसा कॉइन इन द पर्स, ठीक है। अच्छा इफ़ ही हैज़ 50 कॉइन, तो मतलब ये कह रहा है भाई अकॉर्डिंग टू, यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना। क्या लिखो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, तो भाई ये कह रहा है x प्लस वाई अगर टुगेदर कह रहा है इट हैज़ 50 कॉइन, तो ये हो गया 50 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। कॉइन इन ऑल टोटलिंग, कह रहा है टोटलिंग जो है वो इतना है, एक बात होता है सब पैसे में है ना, तो हम भाव निकालते भाई, देखो है ना, देखो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नंबर सेकेंड, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन का पहले रेट निकालते हैं, है ना, द रेट ऑफ 20, कह रहा है द रेट ऑफ 20 पैसा कॉइन इज इक्वल टू बेटा 20 इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 20x, ये उसका रेट हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली रेट ऑफ 25 पैसा कॉइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 25 इंटू क्या हो जाएगा बताओ y, मतलब ये हो गया भाई 25y, ठीक है ना। अब कह रहा है भाई इन दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों का रेट कितना था 11 रुपीज़ 25 पैसा, तो
भाई ये कह रहा है भाई 20x प्लस 25y इज इक्वल टू, अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1125 आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम 5 कॉमन लें, सबसे 5 कॉमन ले लें, तो 5 कॉमन करेंगे तो ये भाई 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 1125, ठीक है ना। डिवाइड कर देंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 है ना, 5 2 जा 10, एक बचा 12 हो गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो ये हो गया भाई 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 225, ठीक है ना। और इसके पहले हमने इक्वेशन बनाया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ठीक है। ये देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ये इक्वेशन था। अब क्या करें भाई, इसमें मल्टीप्लाई कर लें किससे, 5 से, तो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 250, और पहली वाली क्या है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 225, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, साइन चेंज, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो कैंसिल आउट हो गए, x इक्वल टू 25, ठीक है, क्वाइन, है ना। अब ये वैल्यू भाई किसी इक्वेशन में पुट कर लोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 50 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे भाई x की जगह पे, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, उधर जाएगा भाई, ध्यान से देखो, उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई बताओ, 50 माइनस 25, तो ये आ गया बेटा 25, समझ में आया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 25, बात समझ में आ गई। दोनों का कॉइन कितना है भाई 25। अच्छा 8वें का आंसर चेक करते हैं, ध्यान से देखो, 8वें का आंसर देखो सही आया है क्या, देखो यहाँ देखो 8वें का आंसर कॉइन ऑफ ईच, समझ में आ गया कि नहीं आएगा, कैसे हम लोग रीड करते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। चलो तो हमने तो 8 क्वेश्चन लगा लिया। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ 9th वाला, देख लो 9th वाला क्या है भाई, देखो ध्यान से देखो। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, है ना। देयरफॉर कह रहा है कि सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days while Suzy paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for the each extra day, ठीक है ना। तो ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, तुम लगा करके दिखाना, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द नंबर, नंबर के ऊपर क्या बेस होता है, ठीक है। चलो थैंक यू।